Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to continue the chapter 9 of science, which is the living organisms and their surroundings. So students, today we are going to start this class by different terrestrial habitats. So in the previous class we studied about two types of habitat, terrestrial habitats and aquatic habitats. So students, terrestrial habitats includes deserts, mountain regions, grasslands, polar areas. So today we are going to study about these different kinds of terrestrial habitats. So at first, desert, which have hot and dry climate and have less rainfall. So terrestrial habitat, which includes desert, the following adaptations of various organisms are enlisted below. Snakes and rats dig burrows to escape intense heat as they don't have long legs such as a camel. These animals come out only during the night when it is cooler. तो स्नेक्स और रैट्स जो रहते हैं डेजर्ट्स में, वो क्या करते हैं, इंटेंस हीट से बचने के लिए उनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं, जैसे कि कैमल्स, स्नेक्स और रैट्स बरोज में चले जाते हैं और जो कैमल होते हैं उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं हीट से बचने के लिए. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. वो सिर्फ रात को ही निकलते हैं जब थोड़ा सा ठंडा होता है. इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस एंड लूज लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो डेजर्ट प्लांट्स, वहाँ पे डेजर्ट एरिया जो है, वहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनको सफिशिएंट वाटर क्रिएट अपने में पकड़ के रखने के लिए, अपने में स्टोर करने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पाइंस, और वो बहुत कम वाटर लूज़ करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन. The stems of desert plants have a waxy coating on them and in most of them more photosynthesis is carried out by the stem. तो वहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उन पे एक कोटिंग होता है जो वैक्सी टाइप का होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस किससे कैरी करते हैं, वो लोग स्टेम से कैरी करते हैं. जबकि यहाँ पे जैसे इन दिस टाइप्स ऑफ प्लेन एरियाज the photosynthesis is carried out by leaves, but in desert areas it is carried out by stem. Their roots go deep into the soil to absorb water. तो उनके roots बहुत soil के बहुत deeply जाते हैं, किसको absorb करने के लिए, water को. The leaves in desert plants are absent to prevent loss of water during transpiration. तो desert plants के जो leaves होते हैं वो नहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा water ताकि loss ना हो transpiration के process से वजह से. Some of the animals are camels, kangaroos and rats, etc. So now we are going to study about camel. So camel's long legs helps to keep their bodies away from the heat of hot sand in desert. तो कैमल के जो लंबे पाँव होते हैं उनको क्या करते हैं, हेल्प किस में करते हैं, ताकि हॉट जो गर्म जो बालू है डेजर्ट में उससे जो हीट निकलती है उससे बचने के लिए. Camels' feet are wide which prevents them from sinking in the land. तो कैमल्स के जो फीट होते हैं वो थोड़े से चौड़े, मतलब वाइड होते हैं ताकि वो सैंड में पूरा घुस ना जाए. A camel can drink large amount of water at a time. तो कैमल वाटर मतलब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है ताकि वो पानी को अपने बॉडी पे स्टोर कर सके. The camel can survive for 20 days without drinking water and drink more than 100 liters of water at a time if the camel is thirsty. तो अगर कैमल प्यासा होता है तो वो कितना पानी पी सकता है, एक बार में 100 लीटर पानी पी सकता है और लगभग उस पानी को स्टोर करके वो 20 दिन बिना पानी पिए रह सकता है. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camel lose very little water from their bodies and they can live for many days without water. तो कैमल जो एक्सक्रीट करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, उनका डंग जो होता है बहुत ड्राई होता है और वो स्वेटिंग भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनका जो पानी का जो अमाउंट है वो बहुत कम ही वो लूज़ करते हैं और इसी वजह से वो कई दिन बिना पानी के रह भी सकते हैं. Hump present on camel's back stores fat. It helps it to survive long periods without food and water. Camel's long eyelashes is to protect its eye from sand. तो हम्प जो होता है कैमल के पीछे जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जो उठा हुआ रहता है,
तो वो क्या करता है, वो हम जनरली कौन सा फंक्शन है उसका, स्टोरिंग का फंक्शन है, जहाँ पे फैट स्टोर किया जाता है, और इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल्स के लॉन्ग आई लैशेज उनको प्रोटेक्ट करते हैं सैंड से। So students, here you can see the picture of camel, their long eyelashes, their wide and flat feet, their hump and their long legs, which helps them to survive in that hot and dry climate which is in desert. Now what about the desert rats and snakes? So desert rats and snakes stays in deep burrows in the sand to stay away from the intense heat during the day. तो डेज़र्ट में जो रैट्स और स्नैक्स होते हैं वो बहुत ही डीप, उनका सैंड का जो बरो होता है वो बहुत ही डीप इनटू द सैंड रहते हैं ताकि वो इंटेंस हीट से दूर रह सके दिन के समय में। These animals come out only during the night when it is cooler. Body color of many desert snakes resembles the color of desert sand, hence they are less visible to their predators. तो ये ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं जब थोड़ा सा ठंडा होता है, और इनका जो बॉडी कलर होता है लगभग डेजर्ट के सैंड कलर का होता है ताकि वो प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों से बच सके। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर। नाउ व्हाट अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स? इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर आइदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. तो डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स आइदर एब्सेंट रहते हैं, लीव्स तो होते ही नहीं है, या फिर बहुत छोटे होते हैं, और किस शेप में रहते हैं, स्पाइंस शेप में रहते हैं, जो किस में उनको मदद करता है, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से उनको मदद करता है। फोटोसिंथेसिस इन this plants is usually carried out by the stem. Stem is succulent and spongy, which help in storage of water. The stem is also covered with a thick waxy layer which prevents loss of water from plant. तो photosynthesis हमने अभी पढ़ा था कि वहाँ पे डेजर्टिक प्लांट्स में कौन कैरी आउट करता है, स्टेम्स कैरी आउट करता है, क्योंकि वो सकुलेंट होता है, स्पॉन्जी होता है, और वो हेल्प करता है वाटर स्टोरेज में, और वो एक वैक्सी लेयर में, वैक्सी कोटिंग लेयर में भी कवर्ड होता है, जो कि जो लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको भी वो प्रिवेंट कर सकता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो रूट्स होते हैं डेजर्टिक प्लांट्स में वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, सॉइल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा सॉइल के अंदर होते हैं ताकि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सके। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टेम, their spine leaves modified into spines. You can see the spines, like cactus is the very popular tree which is found in desert areas. So students, here the photosynthesis is carried out through the stem. Okay, here also you can see the water droplets here, and here you can see the cactus. Okay, so यहाँ पे जो photosynthesis जो होता है यहाँ पे लीव से होता है, लेकिन कैक्टस में इसी से होता है, इसी में कैक्टस से इसी से होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न द नोट्स एंड रीड द चैप्टर केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एंड आई एम गोइंग टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।